International Trade Show at the India Expo Mart in Greater Noida. He arrived there a short while ago, scheduled from September 25th to 29th. The mega event, the UP International Trade Show, envisioned under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, will present Uttar Pradesh's industrial and agricultural, cultural and innovation strengths on a global stage. More than just a platform for trade and investments, UP International Trade Show 2025 aims to create a future-ready ecosystem for youth, entrepreneurs and international delegates while celebrating the state's diverse identity through the confluence of craft, culture and cuisine. Prime Minister Narendra Modi inspecting the displays at the UP International Trade Show 2025 in Greater Noida. Since its inception, the trade show has grown remarkably in scale and impact. The inaugural 2023 edition was opened by President Draupadi Murmu. It featured 1,914 exhibitors and 400 foreign buyers. The second edition, inaugurated by the then Vice President Jagdeep Dhankar, expanded to 2,122 exhibitors, 350 foreign buyers and 500,000 visitors, generating export orders worth over 2,200 crore rupees and direct sales of 40 crore rupees. So with more than double the growth in just 2 editions, the third edition is expected to attract over 2,500 exhibitors and 500 foreign buyers, with more than 500,000 visitors, reinforcing its status as a global hub for business investment. A major highlight of this expo will be One District, One Product Pavilion in Hall number 9, featuring 343 stalls dedicated to the signature products of each district. So from Bidohi carpets and Firozabad glasswork to Moradabad metalware and Saharanpur woodcraft, these displays will showcase the journey of Uttar Pradesh's craftsmanship from local to global. And DD India's Akshay Dongre joins us on the phone line. Akshay, what are we expecting from here onwards? Is Prime Minister going to inspect the major pavilion portions, or what is expected? Tell us. Well, Tanvi, as far as the expo is concerned, Prime Minister is expected to actually connect with the local artisans and, probably have conversations with them, meet entrepreneurs, most likely women entrepreneurs who are also in huge numbers here, who have set up their camps, and, over 2,200 exhibitions have been set up here in this year's edition of this mega business showcase. So as far as the International Trade Show is concerned, it is opening today and will go on for the next 5 days. And it is spread in the Expo Mart that is in Greater Noida. And the event has brought together artisans, MSMEs, handloom and even textile producers, along with the industrial houses from across the state and even from the country. There is participation of several, foreign delegates as well. About 80 countries are, participating here. And as far as the business is concerned, it is expected that it will go up a bit higher than the last year's business. That was about 2,000 crore rupees. That was a huge benchmark as far as setting up of by this expo is concerned. So Prime Minister here, he's going to interact with the people. He's going to interact, especially in the light of Prime Minister's call for vocal for local and his push for the indigenous industry in for Atmanirbharta, for Made in India products. This is going to be a perfect place to give that mission a major kickstart. So we will expect Prime Minister Narendra Modi to be here at the exhibition area and interact with the local artisans too. Okay, what we are seeing on our screens is also the presence of Boni Kapoor, who hails from Meerut, Uttar Pradesh. His son
I beg your pardon, his son Arjun Kapoor is also seen. So there is a considerable star presence also here for the popularity of the event? Well, there is immense popularity of the event, at least in Uttar Pradesh and in neighboring states, because the artisans have come from all over the state of Uttar Pradesh. Especially, you have perfume from Kannauj, you have the carpet from Mirzapur, all the things that UP has to offer. The vast population of the state has to offer. Most product events are here. They have been put on display. They have been put on exhibition. So, people who hail from the state of Uttar Pradesh also are taking immense pride in this particular event. Yes, Bonnie Kapoor and other stars that are here is also another testament to the kind of popularity that this expo has gained over the past several years. Okay. Also, whenever any expo of such stature takes place, a flavorful dimension is also added to it. So have you been to this Swad Uttar Pradesh stall where you can taste Banarsi Pan and other such savories? Well, not as of now, Tanvi. We are waiting for the Prime Minister to be here, interact with the artisans, and probably after that we'll also go for shopping and perhaps some savory snacks of Uttar Pradesh, because everything, the entire culture of Uttar Pradesh is on display here, from Banarasi saris to artisans are making their own wooden products and other decorative products. So it's packed with exhibitioners, and their best products are on display, from perfumes to saris to handicraft to textile to everything that you can possibly imagine, and even the savory dishes that you mentioned, Tanvi. Okay, a word on Russia being the partner country. A special pavilion has been dedicated to them, Akshay? Well, yes, Russia is a special partner, and more than the pavilions that have been set up here, it's also the kind of the delegate level interaction that also will take place, since the Russian delegation of trade is here for this international expo of business in Uttar Pradesh. And even for Russia to be here, they also see the potential in this kind of an expo. A state much smaller than a very small state in terms of size, but in terms of population, it's larger than Russia. So they also understand about the kind of products that are being made here and the kind of customer base that India has for the rest of the world. So it's an exciting time even for the Russian delegation to be here, the trade delegation, because not only they can experience the products that are here, that are made in India products, they can also see firsthand the sort of transformation in the manufacturing industry that's taking place across the country. Okay, let's tell our viewers that this is the third edition of Uttar Pradesh International Trade Show. It gets bigger every time with the kind of participation, its scale and impact. Prime Minister Narendra Modi is at the expo in Greater Noida, and he's interacting with the local exhibitors there. Akshay, coming back to you, beyond business, what kind of cultural activities will be held at the UP International Trade Show? Well, because Prime Minister is coming, he's the chief guest here, Tanvi. There is a lot of excitement. People are here, sort of a cultural display, and dance also is on display here at the expo, because several high-level delegations are coming in, dignitaries are coming. So to give them a proper rousing welcome, arrangements have been made by the administration for also cultural events like dance performances by the performers who have been waiting for the Prime Minister to arrive since morning. So there is a lot of cultural display, also cultural performances on display. But besides that, in terms of cuisine, in terms of food, in terms of other things, especially the exhibition, that in itself is a massive cultural power of Uttar Pradesh on display, and from across the country also. Exhibitors are displaying their culture, their artistry here at the International Expo in Greater Noida. All right. So this Uttar Pradesh International Trade Show's third edition will run from September 25th to 29th, a landmark event in the history of Uttar Pradesh. It will attract significant investments
will serve as centers for B2B activities, focus on B2C interactions. And of course, it has different stalls and pavilions dedicated to civil aviation, Russia pavilion, electronics, tourism, clean mission, agriculture, dairy, textiles, logistics. The second floor will serve as the venue for inaugurations, knowledge sessions, showcases of renewable energy, defense manufacturing, health, education and culture. And for those visiting at the third edition of the UP International Trade Show in Greater Noida, can also taste the different delicacies of Uttar Pradesh, traditional delicacies such as the Moradabadi dal, Banarsi pan, Panchi Petha, Jain Shikanji, Mathura Peda and so on. Of course, these food brands will get an opportunity, and of course they are coming from the heartland of the country. They will get an opportunity to reach both national and international markets. Okay, so under Chief Minister Yogi Adityanath's flagship Chief Minister Yuva scheme, another hall is dedicated, hall number 18A. It will host 150 innovative stalls featuring franchisee-based ventures, technology-driven business models, agri-tech, health tech and startup ideas. So this, Akshay, if you're still with me, well, this international trade show will also act as a significant forum to sign MOUs in different fields, be it MOUs of trade and investment, but also with premier educational institutions, defense exhibitors and so on. Well, can you repeat that question, Tanvi? Yes, I'm saying it's a wonderful opportunity for investment both with national and international markets. Well, of course, obviously, Uttar Pradesh has set up a target of being $1 trillion economy in the next few years, and you know, it has been marching towards that direction. So, if you look at the economies that can do so well, will have to have you know, a mix of all sort of industries, from manufacturing to technology to you know to all sort of possibilities of being a modern economy, and that can only happen if you have a modern economy that has a confluence of all different aspects of a modern society, from defense. Yes, you have absolutely rightly mentioned that, you know, Uttar Pradesh has taken lead in the sort of manufacturing for defense products, like the AK's factory has been set up here in the state of Uttar Pradesh by the Kalashnikov and Rosneft industries from Russia here. Samsung has set up one of the largest mobile manufacturing plant here. You know, different industries are moving to Uttar Pradesh because of the incentives that the government is giving them. So everything is on display, you know, from culture to, like you rightly said, food, you know, thaggu ke laddu and everything that is savory from all different parts of the state, from Varanasi to Aligarh, to Mathura, to Agra, to Pethas, to you know, Banarasi saris. Almost, yes. This is a mix, it seems, of the entire Uttar Pradesh coming together and setting up an expo, so for the world to see. Yes, so that is going to be a major point of attraction. And also, you have rightly said that in terms of you know, major industries and you know, complicated industries such as industries that have artificial intelligence or quantum computing, all of that also is finding a place in this expo, because you know, when it comes to a state like Uttar Pradesh, you cannot become a major economy or a major you know, growth engine economy unless you have all aspects of modern industry embedded in your manufacturing base. So it seems that this is yet another attempt by the Uttar Pradesh government to further boost their economy and you know, create jobs and set up the state of Uttar Pradesh as the manufacturing base, not only for India but for the world. Yes, indeed. You mentioned about Banarsi sari. Let's tell our audiences that these saris are among the finest saris in India and known for their gold and silver brocade or zari, which is fine silk and opulent embroidery. And these saris are of great value for
not only women in India, but of course for women wearing them across the world. And of course, this industry is very unique. It dates back several years. It's done with the cottage industry for about 1.2 million people associated directly or indirectly with the handloom silk industry of the region. Gorakhpur, Chandauli, Bhardohi, Jaunpur, Azam districts are involved in the making of these Banarasi saris. Then you have Bhadohi carpets, also one of the very popular carpets known for their durability, softness and unique designs, which incorporate a blend of traditional and modern patterns. So the carpet weaving industry of South Asia, the sari industries, handloom industry, of course, food products are all on display here in the India Expo Mart in Greater Noida, and it is happening under the aegis of UP International Trade Show. Third edition runs from September 25th to 29th. The theme, Ultimate Sourcing, begins here. That's the target for the Chief Minister of the state, Yogi Adityanath, to pitch Uttar Pradesh as a destination for making landmark investments both nationally and internationally. Of course, MOUs will be signed across various domains among the premier educational institutions as well. Final year students will get opportunities to participate in projects here. Bankers and industry leaders will extend financial and strategic support. And CM Yuva Fellows from 75 districts of the state will showcase local brands amplified by a digital campaign, and the platform conclave.cmyuva.org.in to connect youth with opportunities. So hall number 18A at the UP International Trade Expo, it's called CM Yuva Scheme, will host 150 innovative stalls featuring franchisee-based ventures, technology-driven business models, agri-tech, health tech, startup ideas. Akshay, of course, other states can also, and in fact have also hosted such investment and trade shows. UP, steering example here because it gets bigger each time. Okay, so we seem to have lost Akshay there, but Prime Minister Narendra Modi is set to address and inaugurate formally the Uttar Pradesh International Trade Show. We are all standing by for the inauguration. So 5 lakh visitors are expected at the Uttar Pradesh International Trade Show. And a trade show app has been launched for easy navigation and coordination. So from handicraft artistry to cutting-edge technologies, the Uttar Pradesh International Trade Show is set to be a confluence of tradition and modern enterprise. With global participation, massive footfall expected, the event is poised to give Uttar Pradesh a bigger role in India's growth story.
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की। महोदय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। यहाँ विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, उद्योग और व्यापार जगत की प्रसिद्ध विभूतियों का, अतिथियों का, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस अवसर पर यहाँ स्वागत अभिनंदन करें। उन्हें माँ दुर्गा की कांच की एक अनूठी प्रतिमा भेंट करके, देवियों सज्जनों, आप जानते हैं ये नवरात्रों का पावन अवसर है, इसीलिए कांच से निर्मित सुंदर नक्काशी वाली माँ दुर्गा की प्रतिमा मुख्यमंत्री महोदय भेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय को, आप सबके करतल ध्वनि के साथ। फिरोजाबाद के हमारे शिल्पियों ने अपने हाथों से गढ़ा है माँ दुर्गा का ये प्रतिरूप। अभिनंदन, वंदन महोदय आपका। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, वे इस अवसर पर स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू करने के पश्चात प्रथम उत्तर प्रदेश आगमन पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गरीब, किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग, व्यापारी, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित सभी वर्ग और समुदायों को दीपावली का यह बेहतरीन उपहार देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। अपैरल और टेक्सटाइल, लेदर उत्पाद, हस्तशिल्प और कारपेट्स में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। बदलते वैश्विक आर्थिक परिवेश की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसके लिए हम सब उत्तर प्रदेशवासी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि वन नेशन वन टैक्स जुलाई 2017 में लागू हुआ था। टैक्स के अलग अलग जो रूप थे, जो न केवल एक व्यापारी को बल्कि एक उपभोक्ता को भी न केवल परेशान करते थे बल्कि भारी उलझन में डालते थे। 2017 में उठाए गए उन कदमों के उपरांत उस समय जो 4 स्लैब्स थे, उनमें मुख्य रूप से 2 स्लैब्स ही अब इस नई सुधार के अंदर जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेंगे। और इसमें न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, पिछले 4 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि मार्केट में एक नई जीवंतता देखने को मिली है। उपभोक्ता तेजी के साथ बाजार की ओर रुख किया है। क्या गरीब, क्या किसान, क्या श्रमिक,
क्या व्यापारी, हर एक तबके को जैसे एक नया जीवन दान मिला है और इससे व्यापक पैमाने पर रोजगार के सृजन के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ओडीओपी सेक्टर के हमारे उद्यमियों को तो एक प्रकार का ये नया जीवनदान प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के अपने सभी नागरिकों की ओर से, यहां के उद्यमियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के अवसर पर वे यहां पर पधारे हैं। इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अंत्योदय के प्रणेता सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती भी है। उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में आज से 70 वर्ष पहले एक नया चिंतन दिया था और अंत्योदय को राष्ट्रोदय में बदलने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक विशिष्ट अवसर है। ये विशिष्ट अवसर केवल एक ट्रेड शो का नहीं बल्कि वर्तमान की उन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल का और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के उस प्रधानमंत्री जी के विजन का एक स्वरूप है, जिसका आज उद्घाटन करने के लिए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज इस समारोह में पधारे हैं। मैं इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजन समिति की ओर से इस पूरे समारोह में उनका हृदय से स्वागत करता हूं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का यह तीसरा संस्करण है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समारोह में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भी भाग ले रहे हैं और इसमें 2250 से अधिक एग्जीबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से सहभागी बनकर के ब्रांड यूपी का उत्सव पिछले 8-8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवनदान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य को देश और दुनिया के सामने शोकेस करने का यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबको प्राप्त हुआ है। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पहले देश के युवाओं के लिए कहा था कि भारत के युवा को अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा, उनकी स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की जैसी स्कीम और भी ऐसी बेहतरीन योजनाएं आज हम सब के लिए एक बैकबोन का काम की है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से भी इन युवाओं को नया उद्यमी बनने के लिए की दिशा में कदम उठाया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 1 वर्ष से भी कम समय में यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस स्कीम को लागू किया था और अब तक 90,000 से अधिक युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। अंतिम उद्यम पंक्ति में खड़े अंतिम हुनरमंद कारीगर और हस्तशिल्पी के उत्थान के लिए अत्यंत संवेदनशील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरागत कारीगरों और हस्तशिल्पियों को पीएम विश्वकर्मा योजना उपहार में दी है। इसमें परंपरागत जो हमारे
हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनका न केवल ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि टूल किट के लिए एक पैकेज भी उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें राज्य सरकार की ओर से संचालित ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से भी उनकी ट्रेनिंग और उन्हें टूल किट वितरण करते हुए 4 लाख से अधिक ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों को अब तक यहां पर ट्रेनिंग दे करके वोकल फॉर लोकल मंत्र को, स्वदेशी का एक संकल्प दे करके हुनरमंद कारीगरों को भी एक नया बाजार उपलब्ध करवाने का यह एक प्लेटफॉर्म बना है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में 77 जीआई उत्पाद के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष जीआई कैपिटल बना है। इस वर्ष हम लोगों ने 75 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार प्रदेश अपने हजारों वर्षों की उस विरासत को, जो एक धरोहर के रूप में उत्तर प्रदेश में मौजूद थी, उसे सजाने, संवारने और उसका संरक्षण करने का कार्य हम इसके माध्यम से आगे करने जा रहे हैं। और यहां पर जो हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनमें 60 से अधिक जीआई टैग स्टॉल भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम सबको यहां पर देखने को मिलेंगे। स्टार्टअप्स, ओडीओपी, हमारे उभरते हुए जो एक्सपोर्टर्स हैं, महिला उद्यमी, नए उद्यमी, हस्तशिल्पी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास, महिला स्वयंसेवी समूह, वन और पर्यावरण विभाग के अपने विभिन्न उत्पाद भी और उनके द्वारा किए गए प्रयास भी इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ था, जिसके माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें से 12 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव अब तक जमीनी धरातल पर उतर करके कुछ प्रस्तावों में, कुछ उद्यमों में प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो चुका है। और उन्हीं में से 5 लाख करोड़ का हम नवंबर 2025 में प्रस्तावित कर रहे हैं, जिन्हें ग्राउंड ब्रेकिंग करने की तैयारी वर्तमान में चल रही है। पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को, जिनकी संख्या वर्तमान में 96 लाख से अधिक है, उस एमएसएमई उत्पाद को, प्रत्येक यूनिट को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज इसके माध्यम से 2 करोड़ से अधिक नागरिक और युवा यहां पर रोजगार और नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। कृषि के बाद रोजगार का उत्तर प्रदेश के अंदर यह सर्वाधिक बड़ा केंद्र बना है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इस सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओडीओपी और पीएम विश्वकर्मा के बाद उत्तर प्रदेश ने व्यापक रूप से एक लैंड बैंक, क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए लैंड बैंक की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की भी एक स्कीम आगे बढ़ाई है, जिसमें अब तक 11 ऐसे फ्लैश पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो चुके हैं। इसके माध्यम से भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ निवेश को अपने यहां आमंत्रित किया है, रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है। प्रत्येक जनपद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में एक इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की भी एक कार्य योजना प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई है। इन जोन्स में
स्वरोजगार और वैश्य रोजगार से संबंधित सभी विभागों, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, खादी और ग्रामोद्योग तथा बैंकों को भी उनके कार्यालय स्थापित करने और श्रम और सेवायोजन के कार्यालय को भी यहीं पर स्थापित करने की एक योजना है। उत्तर प्रदेश का जो भी युवा उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है या कोई रोजगार का इच्छुक युवा होगा, यह इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन ही उसके स्किल डेवलपमेंट के साथ ही उसे रोजगार और उसको उद्यम स्थापित करने में वहां पर मदद देगा। आज उत्तर प्रदेश आईटी, सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बन रहा है। देश की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का 55% मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 50% से अधिक की हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र की देश विदेश की अग्रणी कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं और इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आईटी क्षेत्र को भी आज इंडस्ट्री का दर्जा प्रदान किया है। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रोड, एयर, रेल और वाटर कनेक्टिविटी में यह एक अग्रणी स्थान में आया है। प्रदेश में निवेश का एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना है और प्रदेश में कानून व्यवस्था की चुस्त दुरुस्त स्थिति है। दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना और स्वदेशी साधनों का बेहतर उपयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सहित समाज के सभी अंगों का समेकित रूप से मिलकर के कार्य करना होगा और ये ट्रेड शो उसके लिए एक बेहतरीन मंच बनकर के उभरा है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्राप्त हो रहा है, उसके कारण आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके भारत के और विकसित भारत के ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निर्वहन कर पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर समारोह में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, एमएसएमई मंत्री श्री राकेश सचान जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश में पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास के मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, परिवहन राज्य मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के व्यवसायिक और कौशल विकास के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण जी, लोक निर्माण के विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद श्री महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी समेत आज यहां पर विभिन्न देशों के हमारे माननीय एम्बेसडर्स और इस पूरे आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में रूस हम सब के साथ मिलकर के कार्य कर रहा है। मैं इन सब का भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी एग्जीबिटर्स आए हैं और युवा इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पर जो फॉरेन बायर्स यहां पर 532 से अधिक संख्या में उपस्थित हुए हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यह नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में और विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश की भूमिका को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित होगा। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का उनके स्वागत संबोधन के लिए। देवी सज्जनों,
माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अभूतपूर्व बदलाव का साक्षी बना है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो उस सिद्धि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की इस सारगर्भित यात्रा पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म हमने तैयार की है आपके अवलोकनार्थ। आइए देखते हैं ये फिल्म। Under the guidance of our visionary Prime Minister Narendra Modi, new Uttar Pradesh of New India is emerging as a $1 trillion economy. With improved law and order and industry-friendly policies, new Uttar Pradesh is consistently scaling new heights in industry and trade. आज भारत में सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ, उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला है। In line with our inspirational Prime Minister's vocal for local vision and under the dynamic leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, Uttar Pradesh International Trade Show has emerged as a true symbol of comprehensive business growth. In its first edition, Uttar Pradesh International Trade Show boosted the morale of entrepreneurs, attracting over 70,000 buyers and more than 3 lakh visitors. The immense success of the second edition gave local products access to the international market, showcasing the potential of Uttar Pradesh on a global stage. To add a new chapter to the huge success of the first and second editions, the third edition of the Uttar Pradesh International Trade Show is being held in Greater Noida from 25th to 29th September 2025. प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के अनुसार विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो लक्ष्य उन्होंने हमें दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। The third edition of UPITS will witness participation from business houses across India and abroad, with Russia joining as the partner country this year. Featuring over 2,400 exhibitors, more than 1,25,000 B2B visitors, over 4,50,000 B2C visitors, and insightful knowledge sessions, this mega event is set to chart a new course. At this Global Trade Mahakumbh, the world will experience the trade, tradition, and transformation of new Uttar Pradesh, along with a unique glimpse of its art and culture. Join us and be a part of the third Global Trade Mahakumbh of New Uttar Pradesh and take your business to global heights. Uttar Pradesh International Trade Show. Ultimate sourcing begins here. देवियों सज्जनों, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत। इस नए भारत के शिल्पी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए आप सबकी सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करें इस अवसर पर उनके प्रेरक संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उद्योग जगत के सभी साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आए सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और नौजवान साथियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि यहाँ 2200 से अधिक एग्जीबिटर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है।
यानी इस ट्रेड शो में हम एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी जी को, सरकार के अन्य सभी साथियों को, स्टेक होल्डर्स को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी। अंत्योदय यानी जो सबसे आखिर में है उसका उदय। गरीब से गरीब तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है। और अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय की मजबूती रही हुई है। और आज विकास का यही मॉडल भारत दुनिया को दे रहा है। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है। इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात है कि इसने समावेशी विकास को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बहुत ताकत दी है, बढ़ावा दिया है। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो सबको साथ लेकर चलते हैं। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी, ये हर किसी को मौका दे रहे हैं। यानी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। आज भारत में इसका असर हर जगह दिखाई देता है। मॉल में शॉपिंग करने वाला भी यूपीआई इस्तेमाल करता है और सड़क पर चाय बेचने वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है। फॉर्मल क्रेडिट जो कभी सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिलता था, वही अब पीएम स्वनिधि से रेहड़ी ठेले वालों तक पहुंचता है। साथियों, ऐसे ही गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जैम है। एक समय था, अब सरकार को कोई सामान बेचना और बड़े प्लेयर्स के बस की बात, उन्हीं के कब्जे में था एक प्रकार से। लेकिन आज जैम पोर्टल से करीब 25 लाख सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स उससे जुड़े हुए हैं और सरकार को सप्लाई का काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उद्यमी हैं, दुकानदार हैं, जो भारत सरकार की जरूरत के हिसाब से वो सीधे अपना सामान भारत सरकार को बेच रहे हैं और भारत सरकार खरीद रही है। आप हैरान रह जाएंगे कि अब तक जेम के माध्यम से भारत सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए का सामान या सर्विस खरीद चुके हैं। इस पोर्टल पर करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए का सामान हमारे एमएसएमई, लघु उद्योगों से खरीदा गया है। पहले की सरकारों में ये सोचना भी असंभव था, लेकिन आज देश के दूर सुदूर कोने में जो छोटा सा दुकानदार है, वो भी जैम पोर्टल पर अपना सामान बेच रहा है। और यही तो सच्चे अर्थ में अंत्योदय है। यही विकास का आधार है।
साथियों, आज भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हो रही डिसरप्शन और अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है। डिसरप्शन हमें भटकाते नहीं, लेकिन हम उस परिस्थिति में से नई डायरेक्शन खोजते हैं, नई डायरेक्शन का मौका ढूंढते हैं। इसलिए इन डिसरप्शन के बीच आज भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है और इसमें भी हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हमें भारत में ही बनाना है। आज यहां मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में उद्यमी हैं, ट्रेडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। मेरा आज आपसे आग्रह है, अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हो। साथियों, आप सभी जानते हैं आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन साथियों, मेरी कुछ अपेक्षाएं भी हैं जो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उत्तम से उत्तम होना चाहिए। आज देशवासियों के मन में ये बात है कि स्वदेशी उत्पादों की क्वालिटी में लगातार सुधार होता रहे, यूजर फ्रेंडली हो, लंबे समय तक काम आने वाले हो। इसलिए क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज देश का हर नागरिक स्वदेशी से जुड़ रहा है, वो स्वदेशी खरीदना चाहता है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भावना को आज हम
चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। हमारे ट्रेडर्स को भी इस मंत्र को अपनाना है। जो भारत में उपलब्ध है उसे ही प्राथमिकता देनी है। साथियों, एक अहम विषय रिसर्च का है। हमें रिसर्च में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, कई गुना बढ़ाना है। इनोवेशन के बिना दुनिया ठहर जाती है, व्यापार भी ठहर जाता है, जिंदगी भी ठहर जाती है। और सरकार ने इसके लिए जरूरी कदम उठाए हैं। अब रिसर्च में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए सबको आगे आना ही होगा। ये समय की मांग है। हमें स्वदेशी रिसर्च का, स्वदेशी डिजाइन और डेवलपमेंट का पूरा इकोसिस्टम बनाना है। साथियों, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा उत्तर प्रदेश भी अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है। बीते कुछ वर्षों में यूपी में कनेक्टिविटी की जो क्रांति हुई है, उसने लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है। यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन चुका है। यूपी देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। ये देश के 2 बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का हब है। हेरिटेज टूरिज्म में भी यूपी नंबर 1 है। नमामि गंगे जैसे अभियानों ने यूपी को क्रूज टूरिज्म के लिए उसके मैप पर ला करके अपना स्थान बना दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने यूपी के अनेकों जिलों के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा दिया है। और मुझे तो विदेशी मेहमानों से मिलना होता है, तो आजकल मुझे कोई क्या देना है बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कैटलॉग हमारी टीम देख लेती है, बस उसी दुनिया भर के देश के लोगों को मैं दे देता हूं। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूपी नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, बीते दशक में भारत इसमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना है। और इसमें यूपी का रोल बहुत बड़ा है। आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं उसमें से लगभग 55% मोबाइल यहां उत्तर प्रदेश में बनते हैं। यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी पर काम शुरू होने वाला है। साथियों, एक और उदाहरण डिफेंस सेक्टर का है। हमारी सेनाएं स्वदेशी चाहती हैं, दूसरों पर निर्भरता को कम करना चाहती हैं। इसलिए भारत में ही हम एक वाइब्रेंट डिफेंस सेक्टर डेवलप कर रहे हैं। पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप हो, हम ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं। और यूपी इसमें भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। बहुत जल्द रूस के सहयोग से बनी फैक्ट्री से AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। यूपी में एक डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल समेत अनेक अस्त्र शस्त्र का निर्माण शुरू भी हो चुका है। मैं आप सभी का आह्वान करूंगा, यूपी में इन्वेस्ट करिए,
यूपी में मैन्युफैक्चर करिए। यहां लाखों एमएसएमई का मजबूत नेटवर्क है और ये लगातार बढ़ रहा है। आप इनके सामर्थ्य का उपयोग कीजिए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं पर बनाइए। इसके लिए हर मदद के साथ यूपी सरकार, भारत सरकार आपके साथ है। साथियों, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के कमिटमेंट के साथ अपनी इंडस्ट्री, अपने ट्रेडर्स, अपने नागरिकों के साथ खड़ा है। अभी 3 दिन पहले ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं। जीएसटी में हुए बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को नए पंख देने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म से जीएसटी रजिस्ट्रेशन आसान होगा, टैक्स डिस्प्यूट्स कम होंगे और एमएसएमईज को रिफंड भी तेजी से मिलेंगे। इससे हर सेक्टर को लाभ होगा। आप सभी ने जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद और अब तीसरा स्टेज है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, यानी तीनों परिस्थितियों को अनुभव किया है। कितना बड़ा अंतर आया है, ये मैं कुछ उदाहरणों से आपके सभी के बीच रखना चाहूंगा। 2014 से पहले, यानी आपने मुझे काम दिया उसके पहले की बात कर रहा हूं। 2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे, यानी एक प्रकार से टैक्स का जंजाल था और उसके कारण बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे। उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। 1000 रुपये की शर्ट पर, ये 2014 के पहले की बात कर रहा हूं, आपके पास पुराना बिल पड़ा है तो निकाल दीजिए। 2014 के पहले 1000 रुपये की शर्ट पर 170 रुपये टैक्स लगता था, 170 रुपीज। साल 2017 में जब हम जीएसटी लाए तो आने के बाद पहले जीएसटी में 117 से कम होकर के 50 हो गया। यानी 1000 के शर्ट पर पहले 117 था, 2017 में जब हम जीएसटी लाए तो 50 हो गया। और अब 22 सितंबर को लागू हुए रेट्स के बाद 1000 रुपये के उसी शर्ट पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। साथियों, 2014 में टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, इन सभी पर अगर कोई 100 रुपया खर्च करता था तो इन पर 31 रुपये टैक्स देना पड़ता था। 100 रुपये पर 31, यानी 100 रुपये का बिल 131 रुपये का बनता था। ये 2014 के पहले की बात कर रहा हूं मैं। 2017 में जीएसटी आया तो 100 रुपये का यही सामान 118 रुपये का हो गया, 131 से कम होकर के 118। यानी हर 100 रुपये के बिल पर 13 रुपये सीधे बच गए। अब जीएसटी की अगली पीढ़ी में, यानी इस बार जो जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है, ये सामान 100 रुपये पर 5 रुपया 105 रुपये का हो गया है। 131 से 105 पर आ गया। यानी 2014 से पहले की तुलना में सीधे
26 रुपये की बचत, 100 रुपये पर 26 रुपये की बचत देश के सामान्य नागरिक को हुई है। इस उदाहरण से आज समझ सकते हैं कि एक सामान्य परिवार की हर महीने कितनी बचत हो रही है। अगर कोई परिवार अपने परिवार में जो भी आवश्यकता होती है साल भर का हिसाब लगा ले और मान लीजिए 2014 में अगर एक साल में वो 1 लाख रुपए की चीजें खरीदता था, अगर 1 लाख रुपए के आसपास उसने 2014 के पहले कुछ खरीद किया होगा, तो उसे उस समय करीब करीब 25,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था। अगर साल भर में 1 लाख रुपया की चीजें उसने खरीदी तो 25,000 रुपया टैक्स था 2014 के पहले, मेरे आने से पहले। ये बयान बहादुर लोग आजकल बयान करते हैं ना, जरा उनको सुनाइए। लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के बाद उसी परिवार को सालाना सिर्फ 25,000 से कम होकर के करीब करीब 5-6 हजार रुपया तक टैक्स आ गया है। 25,000 से 5,000, क्योंकि जरूरत के ज्यादातर सामान पर अब सिर्फ 5% जीएसटी हो गया है। साथियों, हमारे यहां गांव की अर्थव्यवस्था में ट्रैक्टर की बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले एक ट्रैक्टर खरीदने पर 70,000 रुपये 70,000 रुपये से अधिक टैक्स देना पड़ता था। ये 2014 से पहले 70,000, अब उसी ट्रैक्टर पर सिर्फ 30,000 रुपये का टैक्स लग रहा है। यानी किसान को सीधे एक ट्रैक्टर पर 40,000 रुपये से अधिक की बचत हो रही है। ऐसे ही 3 व्हीलर गरीब के लिए रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। साल 2014 से पहले एक 3 व्हीलर करीब 55,000 रुपये का टैक्स लगता था। एक 3 व्हीलर पर 55,000 रुपये टैक्स लगता था। अब उसी 3 व्हीलर पर जीएसटी करीब 35,000 रह गया है। यानी सीधे 20,000 रुपये की बचत हुई है। ऐसे ही जीएसटी कम होने की वजह से स्कूटर 2014 की तुलना में करीब 8,000 रुपये और मोटरसाइकिल करीब 9,000 रुपये सस्ती हुई है। यानी गरीब, नियो मिडिल क्लास सबकी बचत हुई है। लेकिन साथियों, इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 के पहले वो जो सरकार चला रहे थे, उसकी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकारों के समय टैक्स की लूट मची हुई थी और लूटे हुए धन में से भी लूट होती थी। देश के आम नागरिक को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था। ये हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है, महंगाई कम की है। हमने देश के लोगों की आमदनी बढ़ाई है और बचत भी बढ़ाई है। जब 2014 में उनकी सरकार थी, 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ था, 2 लाख रुपए सिर्फ। आज 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री करना और नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए बचने जा रहे हैं।
देशवासियों की जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा। और इसलिए तो देश आज गर्व के साथ जीएसटी उत्सव मना रहा है, जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यहीं नहीं रुकने वाले। 2017 में हम जीएसटी लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया, और 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे। और जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी, टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। साथियों, आज भारत के पास रिफॉर्म्स की स्ट्रांग विल पावर है। हमारे पास डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी भी है। सबसे बड़ी बात, भारत के पास बहुत बड़ी युवा और स्किल्ड वर्कफोर्स है, डायनेमिक युवा कंज्यूमर बेस है। ये सारी बातें दुनिया में किसी की रीजन में भी, यानी एक ही जगह सब बातें दुनिया के किसी देश में एक साथ नहीं है। भारत में हर चीज यहां मौजूद है। दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी अगर अपनी ग्रोथ को नए पंख लगाना चाहती है तो उसके लिए भारत में इन्वेस्टमेंट सबसे अट्रैक्टिव डील है। इसलिए भारत में इन्वेस्ट करना, यूपी में इन्वेस्ट करना आपके लिए विन विन सिचुएशन है। हम सभी के प्रयास मिलकर विकसित भारत बनाएंगे, विकसित यूपी बनाएंगे। एक बार फिर आप सभी को इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Well, you were watching live from India Expo Mart in Greater Noida. In line with his commitment to make in India vocal for local and Atmanirbhar Bharat, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 3rd edition of the Uttar Pradesh International Trade Show. Scheduled from September 25th to 29th, the mega event, envisioned under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, will present Uttar Pradesh's industrial, agricultural, cultural and innovation strengths on a global stage. More than just a platform for trade and investment, UP its 2025 aims to create a future-ready ecosystem for youth entrepreneurs and international delegates while celebrating the state's diverse identity through the confluence of craft, culture and cuisine. Well, Prime Minister Modi in his address welcomed all the traders at the trade show. He said he was happy that more than 2,200 exhibitors were exhibiting their products, and with Russia as the partner country this time, it will give further impetus to business. Well, Prime Minister said that the world is talking about India's fintech system, which is giving platform for all and progress for all, giving inclusive development. Prime Minister said that today, in spite of all the geopolitical disruptions, India is moving forward to become fully developed till the year 2047. Also, we are moving ahead with a mantra of Atmanirbhar Bharat. He said being self-independent is the biggest boon for India, and Prime Minister said that every product which can be made in India will be manufactured in India only. He said that all the traders present here should contribute in making Atmanirbhar Bharat more strong. All right, that's all in this edition of DD India. Keep watching for more. Thank you.